پیش خدمت ہے کہانی شمشان کا 7واں حصہ۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں ملاحظہ کیا کہ کس طرح بدرو عورت عمران کے گھر پہنچتی ہے اور اب عمران کی ماں کے ذریعے اس کے بازو سے وہ تعویذ اتروانا چاہتی ہے۔ اب وہ موقع کی تلاش میں ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے اب اس کہانی میں سنیے۔ بدرو کو اب صرف وقت کا انتخاب کرنا تھا کہ کس وقت عمران کی والدہ کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح کو اپنے قبضے میں کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ عمران کے گھر میں رہ کر بدرو عورت کجلی نے اس کی والدہ کی روزمرہ کی مصروفیات کا مشاہدہ کیا۔ اس نے اپنے ناپاک منصوبے پر عمل کرنے کے لیے خاص وقت کا انتخاب کر لیا۔ یہ وقت آدھی رات کا ہی ہو سکتا تھا۔ یہ منصوبہ تیار کر کے بدرو کجلی ایک رات جب کہ ہر طرف خاموشی تاری تھی اور عمران کے گھر کے سب لوگ سو رہے تھے، بدرو کجلی اپنی اس پرانی سرائے سے نکل کر عمران کی کوٹھی کے لان میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ لان کے باغیچے میں گلاب کے پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھی۔ باغیچے کے کونے میں ایک پودے پر گلاب کے سفید پھول کھل رہے تھے اور وہاں ان پھولوں کی خوشبو بھی بکھری ہوئی تھی۔ وہ گلاب کے پودے کے قریب آ گئی۔ اس نے پودے کی جڑوں کے پاس ایک جگہ اپنی انگلی کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے سے وہاں ایک چھوٹا سا گہرا کڑا بن گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ عمران کی والدہ کا بیڈ روم کہاں پر ہے۔ اب رات کا 1 بجنے والا تھا۔ کوٹھی کے ٹی وی لاؤنج میں ایک کمزور روشنی والا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں دیوار پر لگی ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی نیم اوریاں تصویر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس قسم کے ماحول والا گھر بدروؤں اور بلاؤں کے لیے بڑا سازگار ہوتا ہے۔ اگر ٹی وی لاؤنج میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کا کوئی قطعہ دیوار پر لگا ہوتا تو بدرو کجلی کبھی اس کمرے میں داخل ہونے کی جرت نہ کرتی۔ لیکن یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں صبح سے شام تک انگریزی اور فلمی گانوں کے کیسٹ بجتے تھے اور ٹی وی پر ڈش اینٹینا اور کیبل کے ذریعے انڈیا کے واحد ڈانس دیکھے جاتے تھے۔ چنانچہ بدرو بڑی آسانی سے وہاں داخل ہو گئی۔ وہ سیدھی عمران کی والدہ کے بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر بدرو کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ غیبی حالت میں ہی بیڈ روم کے بند دروازے میں داخل ہو گئی۔ عمران کی ممی یعنی ماں لحاف اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ بدرو کجلی پلنگ کے پاس آ گئی۔ کونے والے ٹیبل لیمپ میں زیرو کا بلب روشن تھا، جس کی بڑی مدھم سی روشنی بیڈ روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ بدرو عورت عمران کی ممی کے اور قریب ہو گئی۔ پھر وہ اپنی سرخ آنکھوں سے عورت کے ماتھے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک ناپاک طلسمی منتر پڑھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ تک منتر پڑھتے پڑھتے بدرو کجلی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ سیاہ دھوئیں کی ایک لکیر نظر آنے لگی۔ پھر اس لکیر نے سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے عمران کی ممی کی طرف رنگنا شروع کیا اور اس کے ماتھے کو چھوا اور اس کے جسم میں داخل ہوتی چلی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے عمران کی والدہ کا جسم خود بخود دھوئیں کی لکیر کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جا رہا ہو۔ جب ساری کی ساری دھوئیں کی لکیر اس کے جسم میں جذب ہو گئی تو عمران کی ماں کا جسم آہستہ سے کانپا۔ دوسری بار اسے جھٹکا سا لگا اور عمران کی ممی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک کمرے کی سامنے والی دیوار کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی سرخی غائب ہو گئی اور ان کا رنگ نارمل ہو گیا۔ بدرو عورت عمران کی والدہ کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ اب پلنگ پر عمران کی ممی کے روپ میں بدرو عورت لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کے اندر سے اٹھ کر عمران کے کمرے کی طرف جانے کو کہہ رہا تھا۔ عمران کی ممی کا اپنا شعور اس سے جدا ہو چکا تھا۔ اب وہ پوری طرح سے بدرو عورت کے قبضے میں تھی اور بدرو عورت اس کے اندر بیٹھی اسے جو کچھ کہہ رہی تھی وہ اس پر عمل کر رہی تھی۔ عمران کی ممی پلنگ سے اتر آئی۔ اس نے اپنا سلیپنگ گاؤن پہنا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ وہ اس طرح چل رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو۔ ڈرائنگ روم سے زینہ اوپر عمران کے کمرے کو جاتا تھا۔ عمران کی والدہ آہستہ آہستہ زینہ چڑھ کر عمران کے کمرے کے دروازے پر آئی۔ دروازہ بند تھا مگر اندر سے چٹخنی نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس نے بدرو کے حکم پر دروازے کو ایک ہاتھ سے کھول دیا۔ دروازے کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی مگر عمران اتنی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اسے کوئی خبر نہ ہوئی۔ عمران کی ممی نے پلنگ کے پاس آ کر عمران کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس وقت وہ عمران کی ممی نہیں بلکہ بدرو عورت کجلی تھی، جو اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ اپنے شکار کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن بدرو عورت کجلی کو معلوم تھا کہ وہ خود کسی حالت میں بھی عمران کے تعویذ کو ہاتھ لگانا تو درکنار اس کے قریب جانے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتی تھی۔ چنانچہ بدرو عورت تھوڑی دیر کے لیے عمران کی ممی کے جسم سے الگ ہو گئی، مگر عمران کی ممی کے جسم اور اس کے دل و دماغ پر اب بھی اسی کا قبضہ تھا اور اس کا غلبہ تھا۔ بدرو عورت دھوئیں کے ایک پتلی سی لکیر کی طرف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے عمران کی ممی کے ذہن میں سرگوشی کی، یہ انسان جو سو رہا ہے اس کے بازو پر تعویذ بنا ہوا ہے، اس کا تعویذ اتار لو۔ اتنی دیر میں بدرو عورت نے عمران پر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک منتر پھونک دیا، جس کی وجہ سے عمران کی نیند بے ہوشی میں تبدیل ہو گئی۔ عمران کی ممی کو بدرو عورت نے اس لیے بھی اس کام کے لیے چنا تھا کہ تعویذ کے اثر کی وجہ سے اگر عمران کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ اپنی ممی کو دیکھ کر گھبرائے گا نہیں، حیران ضرور ہوگا اور اس سے پوچھے گا کہ ممی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں۔ تو اس کا جواب جو عمران کی ممی نے دینا تھا وہ بدرو عورت نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا، لیکن عمران پر نیم بے ہوشی طاری رہی۔ عمران کی ممی یعنی بدرو عورت نے عمران کی ممی کے ذریعے عمران کے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اتار لیا۔
तावीज़ इमरान की मम्मी के हाथ में लटक रहा था और वो इमरान के पलंग के पास खड़ी अपने बेटे को टिकटिकी बांध कर देख रही थी। हकीकत में इमरान की मम्मी को कुछ खबर नहीं थी कि वो क्या कर रही है। ये सब कुछ बदरू औरत कजली अपने तिलिस्म से उससे करवा रही थी। बदरू औरत धुएं की लकीर की शक्ल में उससे दूर हटकर खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की बंद थी। उसने इमरान की मम्मी के जहन में सरगोशी की, तावीज़ लेकर बंद खिड़की में से बाहर निकल जाओ। इमरान की मम्मी खिड़की की तरफ चल पड़ी। तावीज़ उसके सीधे हाथ की उंगलियों में लटक रहा था। वो बंद खिड़की में से गुजर गई। उसके पीछे पीछे बदरू औरत की धुएं की लकीर भी बंद खिड़की में से बाहर निकल गई। बागीचे में सर्द ठिठुरती रात का सन्नाटा था। धुंध फैली हुई थी। इमरान की मम्मी दूसरी मंजिल की बुलंदी से आहिस्ता आहिस्ता फजा में मोलक होकर नीचे आ गई। उसके पांव जमीन पर लगे तो बदरू औरत ने सरगोशी में उसे हुक्म दिया, मेरे साथ साथ आओ। धुएं की स्याह लकीर आगे आगे चलने लगी। इमरान की मम्मी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तावीज़ उसके हाथ में था। बदरू औरत की धुएं की लकीर इमरान की मम्मी को लेकर बगीचे के कोने में गुलाब के पौधे से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। उस वक्त इमरान की मम्मी का जहन मुकम्मल तौर पर बदरू औरत के कंट्रोल में था। इमरान की मम्मी गुलाब के पौधे के पास जो गड़ा खुदा हुआ था वहां बैठ गई। उसने तावीज़ को हाथों में लेकर बड़ी अकीदत से चुमा, अपने माथे के साथ लगाया और फिर बड़ी एहतियात के साथ गड़े के अंदर रखकर उस पर गुलाब के 3-4 सफ़ेद फूल तोड़कर डाले और आहिस्ता आहिस्ता उस पर मट्टी डालकर जमीन बराबर कर दी। बदरू औरत कजली स्याह धुएं की लकीर की शक्ल में उसे बराबर देख रही थी। जैसे इमरान की मम्मी गुलाब के पौधे से हटकर एक तरफ खड़ी हुई, बदरू औरत की स्याह लकीर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी और फिर उसके जिस्म में दाखिल हो गई। उसके फौरन बाद इमरान की मम्मी जैसे ख्वाब में कदम उठाते हुए अपनी कोठी के बंद दरवाजे की तरफ चलने लगी। दरवाजा बंद था, मगर वो बंद दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गई। टीवी लाउंज में जीरो के बल्ब के मध्यम रोशनी हो रही थी। वो टीवी लाउंज में से गुजरकर अपने बेडरूम में आई। स्लीपिंग गाउन उतार कर एक तरफ रखा और बिस्तर में घुसकर लिहाफ ऊपर कर लिया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में खो गई। चंद सेकंड के बाद बदरू औरत धुएं की लकीर बनकर इमरान की मम्मी के जिस्म से बाहर आ गई। बाहर आते ही वो गायब हो गई। मम्मी के बेडरूम से गायब हो जाने के बाद बदरू औरत इमरान के कमरे में आकर नमदार हो गई। अब उसके सामने मैदान साफ था। इमरान उसके आगे बिस्तर पर इस तरह बेसुध पड़ा था जिस तरह दुश्मन हथियार फेंक कर सर झुकाए पड़ा हो। इमरान अब उसके रहमो करम पर था। बदरू औरत ने अपना हाथ बढ़ाकर गजबनाक आलम में इमरान के सर के बालों को पकड़कर एक झटका दिया और इमरान गायब हो गया। गायब होकर इमरान एक मकड़े की शक्ल में बदरू औरत की मुट्ठी में बंद हो गया था। बदरू औरत कजली उसे लेकर गायब हो गई। इमरान को लेकर वो सीधी अपनी आसेबी सराय में आ गई। इमरान को शीशे की एक बोतल में बंद करके उसने चबूतरे के संदूक के ऊपर रख दिया और दोनों बाजू खोलकर एक खास मंत्र पढ़ने के बाद अपनी सहेली जादूगरनी को आवाज दी, मेरी दोस्त जादूगरनी की बदरू, मेरे सहेली मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दूसरी बार आवाज देने पर उसकी सहेली जादूगरनी की बदरू उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बदरू कजली ने सहेली जादूगरनी को शीशे की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, मैंने अपने दुश्मन को इस बोतल में बंद कर दिया है। अब ये मेरे कब्जे में है। मुझे मशवरा दो कि मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा मुकाबला एक ही वक्त में 2 दुश्मनों से है। एक जादूगरनी की लाश जो इमरान की मदद करती है और दूसरी राक्षसनी चुड़ैल जिसकी ताकत मुझसे 1000 गुना बढ़ चुकी है और जो अगर चाहे तो मुझे जमीन में जिंदा दफन कर सकती है। सहेली जादूगरनी ने कहा, सबसे पहले तुम्हें जादूगरनी की लाश को ठिकाने लगाना होगा जो किसी भी लम्हे किसी भी हालत में इमरान की मदद को पहुंच सकती है। उसके बाद तुम्हें इमरान की मदद से राक्षसनी चुड़ैल से अपना तिलिस्मी पुतला हासिल करना होगा जो बड़ा नाजुक, खतरनाक और मुश्किल काम बन चुका है। राक्षसनी चुड़ैल अब कोई मामूली चुड़ैल नहीं रही। तुम्हारी ताकत मिलाकर उसके पास अब इतनी ताकत आ चुकी है कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। तुम्हें कोई कदम उठाने से पहले 1001 मर्तबा सोचना होगा। बदरू औरत कहने लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम मुझसे ज्यादा समझदार और तजुर्बाकार हो और तुम राक्षसनी चुड़ैल की ताकत को जानती हो। मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से उस पर वार करूं। मैं इस जंग में शिकस्त नहीं खाना चाहती। मेरी शिकस्त मेरी मौत होगी। मैं हर हालत में अपना तिलिस्मी पुतला उसे वापस हासिल करना चाहती हूँ। बदरू औरत ने कहा, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तुम अपने दुश्मन इमरान की दोस्त जादूगरनी की लाश को ठिकाने लगाओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि अपना पुतला हासिल करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, क्योंकि जादूगरनी की लाश तुम्हारी दुश्मनी की वजह से इमरान की दोस्त बन चुकी है और खोपड़ी की शक्ल में आकर हर मुसीबत में उसकी मदद करती है। उसको पहले खत्म करना जरूरी है। बदरू कजली ने गुस्से से पेचोताप खाते हुए कहा, मैं जादूगरनी की लाश के तो पुर्जे उड़ा दूंगी। सहेली जादूगरनी ने कहा, पहले तुम ये काम कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि राक्षसनी चुड़ैल से अपना पुतला हासिल करने के बाद उसे किस तरह ठिकाने लगाना है। ये कहकर सहेली जादूगरनी गायब हो गई। बदरू कजली भी उसके बाद गायब हो गई। उसे मालूम था कि जादूगरनी की लाश का ढांचा वीरान खंडर के तहखाने में है। यही वो लाश थी जिसकी पसलियों के अंदर कुडला जादूगर ने बदरू कजली का पुतला छुपा कर रखा था और जिसे इमरान वहां से उड़ाकर ले गया था और जिसको बड़ी मुश्किल से बदरू कजली ने दोबारा हासिल किया था और जो एक बार फिर उससे राक्षसनी चुड़ैल ने छीन लिया था।
दूसरी तरफ जादूगरनी की लाश भी बदरू कजली के खतरनाक इरादों से बेखबर न थी। वो भी कोई मामूली जादूगरनी न थी। जैसे ही उसे इल्म हुआ कि बदरू कजली उसको ख़त्म करने के लिए उसके तहखाने की तरफ आ रही है, उसने फ़ौरन एक खुफिया मंदिर के जरिए अपने ढांचे को गायब कर दिया। बदरू कजली वीरान खंडर के तहखाने में नमदार हुई तो उसने देखा कि चबूतरे पर सुर्ख चादर उसी तरह पड़ी थी जैसे उसके अंदर जादूगरनी की लाश का ढांचा मौजूद था। उसने चीख कर कहा, मेरी दुश्मन जादूगरनी, अगरचे मेरी ताकत तुम्हारी साजिश की वजह से मुझसे छीन ली गई है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूं। और बदरू औरत कजली ने अपना हाथ बढ़ाकर सुर्ख चादर को उठाकर दूर फेंक दिया। ये देखकर उसके होश उड़ गए कि चादर के नीचे जादूगरनी की लाश का ढांचा मौजूद नहीं था और उस वक्त बदरू कजली की हालत देखने वाली थी। उसके हाथ में आया हुआ दुश्मन उसे धोखा देकर फरार हो गया था। वो हलक से दहशतनाक आवाज़ें निकालते हुए तहखाने में बगोले की तरह गर्दिश करने लगी। साथ साथ डरावनी आवाज़ में कहती जा रही थी, तुम मेरे गजब की आग से बचकर कहाँ जाओगी? तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और वहीं जलाकर राख कर दूंगी। वो बार बार गुस्सीली आवाज़ में मंत्र पढ़ पढ़कर फूंक रही थी, मगर उसके मंत्र जादूगरनी की लाश को वापस लाने में नाकाम साबित हो रहे थे। जब बदरू औरत कजली को यकीन हो गया कि जादूगरनी की लाश उसकी पहुंच से दूर जा चुकी है, तो वो गायब होकर अपनी रंजीत सिंह सराय के आसेबी तहखाने में वापस आ गई। यहाँ एक ताक में बंद वो बोतल उसी तरह पड़ी थी जिसके अंदर इमरान मकड़े की शक्ल में बंद था। बदरू कजली ने उसी लम्हे मंत्र पढ़कर अपनी सहेली जादूगरनी को बुला लिया और उसे बताया कि जादूगरनी की लाश गायब हो चुकी है। सहेली जादूगरनी ने कहा, तुम जादूगरनी की लाश को कुछ देर के लिए भूल जाओ और राक्षसनी चुड़ैल से अपना पुतला हासिल करने की मुहिम पर निकलो। जब तुम्हारी पूरी ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी तो फिर जादूगरनी की लाश भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बदरू औरत कजली ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे सबसे पहले राक्षसनी चुड़ैल को ठिकाने लगाकर उससे अपनी ताकत का पुतला वापस लेना होगा। सहेली जादूगरनी अपना मशवरा देकर गायब हो गई। अब उस तहखाने में बदरू कजली थी और सामने ताक में इमरान मकड़ी की शक्ल में बोतल में बंद था। बदरू कजली ने बोतल को उठाया और गायब हो गई। दूसरे लम्हे वो मुल्क श्रीलंका के शुमाल मशरकी जंगल में जाहिर हो गई। वो उन जंगलों से नावाकिफ नहीं थी। चुड़ैल के रूप में उसने उन जंगलों में राक्षसनी चुड़ैल से पहले बहुत वक्त गुजारा था और कई भूले भटके मुसाफिरों को हड़प किया था। अभी उसने चुड़ैलों वाले जंगल का रुख नहीं किया था। उस तरफ जाने का वो खतरा मोल ले भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास पूरी तिलिस्मी ताकत नहीं थी। इस ख्याल से कि राक्षसनी चुड़ैल को जंगल में उसकी मौजूदगी का पता न चल जाए, बदरू कजली ने एक तिलिस्म पढ़कर अपने जिस्म पर और इमरान जिस बोतल में बंद था उस पर फूंक दिया। इस तिलिस्म के असर से बदरू कजली के जिस्म से और इमरान की बोतल से खास शुआएं निकलना बंद हो गईं। यही शुआएं थी जो राक्षसनी चुड़ैल को उसकी मौजूदगी की खबर दे सकती थी। ऐसा सिर्फ बदरू औरत कजली ही कर सकती थी। अगर वह ऐसा ना करती तो राक्षसी चुड़ैल को एक सेकंड में उसकी मौजूदगी का इल्म हो जाता और वो वहां आकर उसे यानी बदरू कजली को वहीं हलाक कर सकती थी, क्योंकि उस वक्त राक्षसी चुड़ैल की ताकत का मुकाबला दुनिया और लोक परलोक की कोई जादूगरनी या चुड़ैल नहीं कर सकती थी। लेकिन राक्षसनी चुड़ैल को बिल्कुल इल्म ना हो सका। उसकी दुश्मनी बदरू कजली अपना तिलिस्मी पुतला वापस लेने के लिए वहां पहुंच चुकी है। उसके बावजूद बदरू औरत कजली बेहद फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी। वो जानती थी कि यह सारा इलाका राक्षसनी चुड़ैल के कंट्रोल में है और यहाँ उसकी हुक्मरानी है, और यहाँ घुसकर राक्षसनी चुड़ैल से अपना पुतला वापस ले लेना और उसे हलाक करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये बदरू कजली का भी जिंदगी और मौत का सवाल था। चुनाचे उसने भी अपनी जान की बाजी लगा दी। इस खेल में सबसे अहम मोहरा जो बदरू कजली के पास था वो इमरान था, क्योंकि उस वक्त दुनिया में इमरान एक ऐसा इंसान था जो अपने बाजू पर चांद ग्रहण के खास निशान होने की वजह से राक्षसनी चुड़ैल पर हाथ डाल सकता था और उस पर राक्षसनी चुड़ैल की खतरनाक से खतरनाक किस्म का कोई असर नहीं हो सकता था। लेकिन सबसे पहले बदरू औरत कजली को यह मालूम करना था कि राक्षसनी चुड़ैल ने उसका पुतला किस जगह पर छुपाया हुआ है। यह काम बदरू कजली की ताकत से बाहर था। अपनी तिलिस्मी ताकत आधी रह जाने की वजह से बदरू कजली पुतले में से निकलने वाली तिलिस्मी शुआओं को महसूस नहीं कर सकती थी। उन शुआओं को सिर्फ इमरान ही महसूस कर सकता था। यह बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आज के ज़माने में रडार काम करता है। बदरू कजली का रडार अपनी कम ताकती की वजह से पुतले की शुआओं को नहीं पकड़ सकता था, जबकि अपने 2 दायरा नुमा चांद ग्रहण के निशानों की वजह से इमरान का रडार इन शुआओं को पकड़ सकता था। बदरू औरत कजली जंगल में एक दूर दराज वीरान इलाके में आ गई। ये जंगल राक्षसनी चुड़ैल के ठिकाने से बहुत दूर वाक़ था। यहाँ जिस ज़माने में आज से हज़ारों बरस पहले लंका के राजा रावण की हुकूमत थी, तो रावण ने एक जगह ज़मीन के नीचे एक खुफिया बावली बनाई हुई थी। ये बावली एक छोटे से तालाब की शक्ल में थी। वो ज़मीन की गहराई में पानी निकल आया था। उस पानी को राजा रावण ने एक छोटे से तालाब यानी बावली की शक्ल दे दी थी। उस बावली के किनारे 4 कोठियां भी उसने बनवाई थी। उनमें से एक कोठली में उसने अपना बुत बना रखा था। उस बुत पर हर महीने की एक खास तारीख को एक कुंवारी लड़की कुर्बान की जाती। उस वक्त राजा रावण खुद वहां मौजूद होता और उसकी मौजूदगी में पुजारी कुंवारी लड़की को उसके बुत के सामने लेटाकर ज़िबा कर देता और उसका खून बुत पर छिड़कता था।
रावण की मौत के साथ ही कुर्बानी का यह सिलसिला बंद हो गया। सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद यह बावली वीरान हो गई। रावण का बुत लोगों ने तोड़ दिया और उस बावली को जाने वाला जमीन दोस्त खुफिया रास्ता भी आहिस्ता आहिस्ता जंगली झाड़ियों और दरख्तों ने ढांप दिया। मगर बदरू औरत कजली जानती थी कि यह खुफिया रास्ता किस जगह पर है। वो इमरान की बोतल लेकर जंगल में उस मकाम पर पहुंच गई जहां किसी जमाने में रावण की खूनी बावली हुआ करती थी। बदरू औरत कजली को वहां पहुंचते ही कंवारी लड़कियों के खून की बू महसूस हुई। कंवारी बेगुनाह लड़कियों के खून की बू हजारों बरस गुजर जाने के बाद भी वहां पर मौजूद थी, मगर सिर्फ उसे बदरू कजली ही महसूस कर सकती थी। खून की बू के साथ साथ चलती बदरू कजली एक जगह आकर रुक गई। यहाँ खून की बू तेज हो गई थी। बदरू कजली अपनी सुर्ख आंखों से झाड़ियों को घूरने लगी। वहां एक छोटा सा टीला था। ये झाड़ियां टीले की दीवार के साथ बहुत बड़े झाड़ की शक्ल में उगी हुई थी। बदरू कजली आगे बढ़कर झाड़ियों को एक तरफ हटाने लगी। थोड़ी सी कोशिश के बाद झाड़ियों के पीछे टीले की दीवार में एक शिगाफ दिखाई दिया। बदरू कजली गायब होकर उस शिगाफ में दाखिल हो गई। शिगाफ के अंदर इस कदर गहरा अंधेरा छुपा हुआ था कि ऐसा अंधेरा बदरू कजली ने पहले कभी नहीं देखा था। अंधेरे में उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि एक जीना नीचे जाता है। वो जीना उतरने लगी। काफी सीढ़ियां उतरने के बाद वो जमीन की गहराइयों में पहुंच गई। यहाँ उसे पानी की धुंधली सी चमक नजर आई। उसने देखा एक छोटा सा तालाब है जो गहरे पानी से भरा हुआ है। यही रावण की खूनी बावली थी। उस बावली के किनारे के सामने जानिब साथ साथ 4 कोठलियां बनी हुई थी जिनके दरवाजे नहीं थे। असल में बदरू औरत कजली को अपने तिलिस्मी पुतले की वापसी की खतरनाक मुहिम के लिए किसी ऐसी खुफिया जगह की जरूरत थी जहां बैठकर वो अपनी मुहिम की मनसूबाबंदी कर सके और राक्षसनी चुड़ैल पर इमरान के जरिए वार कर सके। उस जंगल में रावण की खूनी बावली से बढ़कर कोई महफूज जगह नहीं हो सकती थी। बदरू कजली ने 4 कोठलियों का जायजा लिया। उन कोठलियों में मकड़ियों के जाले ही जाले लटके हुए थे। उसे एक कोठली में सांप और बिच्छू भी रेंगते हुए दिखाई दिए, मगर सांप और बिच्छू बदरू कजली से डरकर भाग गए। एक कोठली में रावण के बुत के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए थे। लंका के राजा रावण के 10 सर हुआ करते थे। इसी वजह से हिंदू लोग आज भी इंडिया में रावण का जो पुतला जलाते हैं उसके 10 सर बनाते हैं और उस रस्म को दशहरा कहा जाता है। ये असल में 10 सिरा लफ्ज है जो बिगड़कर दशहरा बन गया है। बदरू कजली ने देखा कि कोठली के कोने में रावण का सिर्फ एक ही टूटा हुआ सर पड़ा था। बाकी के सर और धड़ गायब हो चुके थे। उस कोठली में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती थी। कोठली में खून की तेज बू अभी तक मौजूद थी। एक छोटा सा स्थान यानी चबूतरा भी था जो टूट फूट चुका था। दीवार में ताक बने हुए थे। बदरू कजली ने उसी कोठली में रहने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने वो बोतल जिसमें इमरान मकड़ी की शक्ल में बंद था एक ताक में रख दी। उसके बाद वो कोठली से निकली और उसने बावली के इर्द गिर्द 2 कोठलियों के बाहर तिलिस्मी मंत्र पढ़कर एक तिलिस्मी हिसार खींच दिया। ये बड़ा हलाकत खेज तिलिस्म था। सिवाय राक्षसनी चुड़ैल के कोई और चुड़ैल या बदरू उस तिलिस्म के हिसार में आते ही जलकर राख हो सकती थी। कोई इंसान तो सिवाय इमरान के उस तिलिस्म से बच ही नहीं सकता था। उसके बाद वो जीना चढ़कर खूनी बावली से बाहर आ गई। यहाँ भी उसने खूनी बावली में उतरने वाले जीने के शिगाफ पर तिलिस्मी मंत्र पढ़कर फूंका और शिगाफ को झाड़ियों से ढांप दिया और वापस रावण की कोठली में आ गई। रावण की कोठली में आने के बाद बदरू कजली चबूतरे के शिकस्ता पत्थरों पर बैठ गई और उसने बुलंद आवाज में तिलिस्मी मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ती रही, फिर अपने होंठ बंद करके दिल में मंत्र दोहराने लगी। जब उसने मंत्रों का चिल्ला पूरा कर लिया तो दोनों बाजू खोलकर बोली, विक्रमी विक्रमी, मैंने तेरा चिल्ला पूरा कर दिया है। अब तुझ पर लाजिम हो गया है कि मेरे सामने जाहिर होकर मेरा एक सवाल पूरा कर। कोठली में बादलों की खौफनाक गरज के साथ बिजली चमकी और खुले बालों वाली किसी औरत का हेवला दीवार में से निकलकर सामने आ गया। ये विक्रमी चुड़ैल थी जिसका बदरू कजली ने चिल्ला काटा था। विक्रमी चुड़ैल ने पूछा, बोल तेरा सवाल क्या है। बदरू कजली ने कहा, मुझे अपने तिलिस्मी पुतले की तलाश है जिसमें मेरी जिंदगी और मेरी ताकत छुपी हुई है। मुझे बता कि मेरा पुतला किस जगह पर है। विक्रमी चुड़ैल बोली, मैं देख रही हूं कि यहाँ से जुनूब की जानिब 12 कोस के फासले पर जंगल में एक पुराने मंदिर का खंडर है। ये खंडर कभी मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर के नीचे एक अंधेरी कोठली है। तुम्हारा पुतला उस कोठली के कोने में जमीन के नीचे दबा हुआ है। बदरू कजली ने पूछा, उस वीरान मंदिर की निशानी क्या है। विक्रमी चुड़ैल ने कहा, उस वीरान मंदिर की एक आधी टूटी हुई बुर्जी अभी बाकी है, यही उसकी निशानी है। उसके साथ ही विक्रमी चुड़ैल गायब हो गई। बदरू कजली को अपने पुतले का सुराग मिल गया था। वो ये भी जानती थी कि राक्षसनी चुड़ैल ने वीरान मंदिर की जमीन दोस्त कोठली में पुतला दबाने के बाद मंदिर के इर्द गिर्द ऐसा तिलिस्म फूंका हुआ होगा जिसके करीब अगर बदरू कभी जाएगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। उस मंदिर के खंडर के अंदर कोई बदरू, कोई चुड़ैल, कोई इंसान तिलिस्मी हिसार में से गुजर कर नहीं जा सकता था, मगर सिर्फ इमरान उस तिलिस्मी हिसार में से महफूज रहकर गुजर सकता था। वो इमरान को इसलिए अपने साथ लाई थी। वो फौरन उठी, ताक में से वो बोतल उठाई जिसमें इमरान मकड़ी की शक्ल में बंद था। उसने बोतल का मुंह खोलकर बोतल अपने साथ रख ली और एक बार फिर मंत्र पढ़ पढ़कर बोतल पर फूंक मारने लगी। कुछ ही देर के बाद बोतल के अंदर मकड़ी गायब हो गई और उसकी जगह धुआं भर गया।
फिर यह धुआं बोतल में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलकर एक छोटा सा गोला बनकर बदरू कजली के सामने चबूतरे पर ठहर गया। बदरू कजली ने बुलंद आवाज में एक दूसरा मंत्र पढ़कर धुएं पर फूंका और बोली, तुम मेरे कब्जे में हो, तुम मेरे गुलाम हो। मैं तुम्हें जो कुछ कहूंगी तुम वही बन जाओगे। मैं तुम्हें जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि अपनी इंसानी शक्ल में जाहिर हो जाओ। बदरू कजली के काले जादू के असर से इमरान फिर से अपनी इंसानी शक्ल में आ गया। वो इंसानी शक्ल में जरूर था, मगर उसके जहन और उसके शऊर पर बदरू कजली का कब्जा था। उसे अपना जहन और अपना जिस्म हल्का हल्का और उड़ता उड़ता सा महसूस हो रहा था। बदरू कजली ने कहा, तुम मेरा हर हुक्म मानने के पाबंद हो, तुम मेरे साथ चलोगे। बदरू कजली ने इमरान का हाथ पकड़कर हलक से एक भयानक आवाज निकाली और दोनों गायब हो गए। वो इमरान को लेकर रावण की खूनी बावली वाले जंगल से उस जगह पर आ गई जहाँ एक खुफिया रास्ता वीरान मंदिर के तहखाने के अंदर जाता था। बदरू औरत कजली उससे आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके आगे राक्षसनी चुड़ैल के काले जादू का हिसार शुरू होता था। इस तिलिस्मी हिसार में से सिर्फ इमरान ही गुजर सकता था। उसने इमरान के माथे को अपने हाथ की उंगलियों के शिकंजे में लेकर एक मंत्र पढ़ा और बोली, जो कुछ मैंने तुम्हारे जहन में डाल दिया तुम वही कुछ करोगे। जाओ, मेरा काम करके इसी जगह वापस आकर मुझसे मिलो। इमरान एक मशीनी आदमी की तरह मुड़ा और झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों के अंदर से गुजरकर वो नीचे वीरान मंदिर में आ गया। उसने रुक कर चारों तरफ घूर कर देखा। सामने की जाने बनी हुई कोठली में से अपने खास किस्म की बू आती महसूस हो रही थी। बदरू औरत कजली ने उसी बू को उसके जहन में डाला था। वो उस कोठली की तरफ बढ़ा। कोठली के करीब आया तो उसे एक झटका लगा और वो 2 कदम पीछे को हट गया। वो एक बार फिर आगे बढ़ा। उसे फिर झटका लगा, लेकिन वो कोठली में दाखिल हो गया। कोठली में अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही वो कोठली में आया, जादूगरनी की लाश की खोपड़ी सामने जाहिर हो गई। इमरान ने खोपड़ी को देखा और ठिठक गया। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, इमरान होश में आओ, तुम अपनी मौत का सामान कर रहे हो। इमरान को जादूगरनी की आवाज जरूर सुनाई दी, मगर वो उसे पहचान न सका और ना ही फजा में मौलिक खोपड़ी को देखकर ये जान सका कि ये उसकी हमदर्द जादूगरनी की लाश की खोपड़ी है। जादूगरनी की आवाज एक बार फिर गूंजी, इमरान, बदरू कजली को उसका पुतला ले जाकर मत देना, नहीं तो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। इमरान पर बदरू कजली का कब्जा था। उसने कहा, तू कौन है जो मुझे कजली देवी के हुक्म को ना मानने के लिए कह रही है? जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, मैं तुम्हारी हमदर्द हूं, मुझे पहचानो, मेरी बात मानो और यहां से मेरे साथ भाग चलो। इमरान ने हलक से एक अजीब से किसी जंगली दरिंदे जैसी आवाज निकाली और कहा, यहां से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पाश पाश कर दूंगा। जादूगरनी की खोपड़ी को मालूम था कि इमरान पर बदरू कजली का असर है और वो ऐसा कर सकता है। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। वो फौरन गायब हो गई। इमरान कोठली के कोने में आकर नीचे देखने लगा। उसे जमीन के अंदर से तेज गर्म शुआएं निकलती महसूस हुई। वो बैठ गया और दोनों हाथों से मट्टी हटाने लगा। उसने तिलिस्मी पुतला निकाल लिया, पुतले को दोनों हाथों में थामा और जिस रास्ते से वहां आया था उसी रास्ते से जमीन दोज मंदिर से बाहर निकल आया। बदरू कजली ने उसे अपनी तरफ आते देखा और उसके दोनों हाथों में अपने तिलिस्मी पुतले को देखा तो उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी की चिंगारियां फूटने लगी। उसने दोनों हाथ आगे कर लिए। जैसे ही इमरान उसके करीब आया, बदरू कजली ने झपट कर पुतला उसके हाथ से छीन लिया और अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए इमरान को बाजू से पकड़ा और फौरन गायब हो गई। गायब होने के बाद वो इमरान को अपने साथ ही लिए रावण की खूनी बावली वाली कोठली में आ गई। उसने इमरान को हुक्म दिया कि उसके सामने चबूतरे पर खड़ा हो जाए। इमरान तो उसका गुलाम बन चुका था। उसने ऐसा ही किया। बदरू कजली ने हुक्म दिया, मेरे काले जादू की ताकत से धुआं बनकर वापस अपनी बोतल में चले जाओ। इमरान का जिस्म उसी वक्त धुएं का गोला बन गया। फिर धुएं का एक गोला एक लहर की शक्ल में शीशे की खाली बोतल में दाखिल हो गया। बदरू कजली ने उसी वक्त बोतल का मुंह जोर से बंद कर दिया और बोतल को अपनी आंखों के सामने लाकर बोली, फिर इसी शक्ल में बदला और जिस शक्ल में तुम पहले बोतल में बंद थे। उसके हुक्म को सुनते ही बोतल में भरा हुआ धुआं सिमट कर मकड़ी की शक्ल इख्तियार कर गया। बदरू औरत कजली ने कहकर लगाया और बोली, अब मैं वो गलती नहीं करूंगी जो पहले मैं कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें जमीन के अंदर जिंदा गाड़ने के बजाय तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और तुमसे वो काम लूंगी जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई इंसान नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी दुश्मन राक्षसनी चुड़ैल को ठिकाने लगाना होगा। बदरू कजली ने इमरान की मकड़ी वाली बोतल को ताक में रख दिया और अपने तिलिस्मी पुतले को दोनों हाथों में थामकर उसे अपने चेहरे के सामने किया और बोली, तुम 2 बार मुझसे गद्दारी कर चुके हो, मगर अब मैं तुम्हें गद्दारी करने का मौका नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम मुझसे गद्दारी करके मेरे किसी दुश्मन के पास जा सको। उसके साथ ही बदरू कजली ने एक ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई आतिशफिशां पहाड़ फट पड़ा हो। उसके खुले हुए मुंह में से खून की एक धार निकलकर उसके हाथों में पकड़े हुए पुतले पर पड़ी और मकड़ी के पुतले में जान पड़ गई। वो किसी जानवर की तरह बदरू कजली के हाथों की गिरफ्त में तड़पने और फड़फड़ाने लगा। बदरू कजली ने फतहमंदी से कहकर लगाकर कहा, नहीं, अब तुम मेरी गिरफ्त से कभी आजाद नहीं हो सकोगे। अब तुम मुझसे कभी गद्दारी नहीं कर सकोगे। तुम्हारा तड़पना और फड़कना बेकार है। ये कहकर उसने तिलिस्मी पुतले को जो जिंदा हो चुका था खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पुतले की गर्दन को अपने नोकीले दांतों में दबोच कर भंबोड़ा।
पुतले के मुंह से एक दिलदोज चीख निकल गई। बदरू औरत कजली ने फौरन पुतले का सर अपने मुंह में डालकर उसे हड़प कर लिया। पुतले की आवाज खामोश हो गई। बदरू कजली देखते ही देखते सारे पुतले को खा गई। उसने पुतले को खाने के बाद एक नारा लगाया और दोनों बाजू खोलकर बोली, कुंडला कुंडला तुम भी सुन लो, लोग पर लोग की चुड़ैलो डायनो तुम भी सुन लो। अब दुनिया की कोई बदरू, कोई जादूगरनी, कोई चुड़ैल मुझसे मेरी तिलिस्मी ताकत नहीं छीन सकेगी। मेरी ताकत हमेशा हमेशा के लिए मेरे जिस्म के अंदर आ गई है। अपनी पूरी ताकत मिल जाने के बाद बदरू कजली की तिलिस्मी ताकतें जो उससे जुदा हो गई थी फिर से वापस उसके पास आ गई हैं। उसका चेहरा और ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखों में से चिंगारियां पहले से ज्यादा फूटने लगी थी। उसने आंखें बंद करते हुए चीख मारी, राक्षसनी राक्षसनी चुड़ैल, मुझे अपना आप दिखाओ, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। बंद आंखों में बदरू कजली ने देखा कि चुड़ैलों के जंगल के खंडर महल में राक्षसनी चुड़ैल एक तख्त पर गहरी नींद सो रही है। उसके तख्त की दोनों जानिब स्याह फाम मुहाफिज चुड़ैलें नंगी तलवारें लिए उसकी हिफाजत कर रही हैं। बदरू कजली ने आंखें खोल दी और फलक शिगाफ चीख के साथ कहा, राक्षसनी, तेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, अब कोई तुम्हें मौत के मुंह से नहीं बचा सकता। और बदरू औरत कजली गायब हो गई। जैसे ही बदरू कजली गायब हुई, खंडर महल में गहरी नींद सोई राक्षसनी चुड़ैल की आंख खुल गई। उसने उठते हुए कहा, मेरा तख्त किसने हिलाया है? मुहाफिज चुड़ैलों में से एक चुड़ैल ने कहा, चुड़ैलों की महारानी, तुम्हारे तख्त को हिलाने की भला जुर्रत कौन कर सकता है? लेकिन राक्षसनी चुड़ैल समझ गई थी कि कोई गड़बड़ जरूर है, कहीं कोई अनहोनी बात हो गई है। उसने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा तो उसे फौरन मालूम हो गया कि उसकी तिलिस्मी ताकत खत्म हो चुकी है। राक्षसनी चुड़ैल का स्याह रंग खौफ से जर्द पड़ गया। उसने घबराकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। ऐन उसी वक्त बिजली की कड़क के धमाके के साथ बदरू कजली उसके सामने आन खड़ी हुई। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसे देखकर चारों मुहाफिज चुड़ैलें डर कर भाग गईं। बदरू कजली ने राक्षसनी चुड़ैल से मुखातिब होकर कहा, राक्षसनी, तेरी जिंदगी के चंद आखिरी सांस बाकी रह गए हैं। इसके बाद जिस तख्त पर तू बैठी है वहां तेरी तड़पती हुई लाश पड़ी होगी। अगरचे राक्षसनी चुड़ैल को इल्म हो चुका था कि उसके पास उसकी ताकत नहीं रही और बदरू कजली ने अपना पुतला उससे छीन लिया है, उसके बावजूद वो भी एक चुड़ैल थी, बल्कि चुड़ैलों के जंगल की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर चुड़ैल थी। वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने भी एक चीख बुलंद की और अपना हाथ एक तरफ फैलाया तो उसके हाथ में भी एक तलवार आ गई। वो तख्त से उछलकर उतरी और बदरू कजली के सामने आकर बोली, कजली बदरू, आज तेरा और मेरा मुकाबला है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास जादूगरों के सरदार कुंडला जादूगर की ताकत है, मगर मेरे पास भी एक ऐसी ताकत है जिसको आज तक मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। बदरू कजली ने कहा, राक्षसनी, तू चाहे जो भी कर ले, मगर तेरी मौत का वक्त आन पहुंचा है। उसके साथ ही बदरू कजली ने लपक कर तलवार का भरपूर वार राक्षसनी की गर्दन पर किया। राक्षसनी चुड़ैल एक सेकंड में गायब हो गई, मगर वो बदरू कजली को साफ दिखाई दे रही थी। अब उस पर तलवार का असर नहीं हो सकता था। बदरू कजली ये सब कुछ जानती थी। किसी चुड़ैल का गायब हो जाना कोई अनोखी बात नहीं थी। बदरू कजली ने मंत्र पढ़कर फूंका, राक्षसनी चुड़ैल ने उसके जवाब में मंत्र फूंका। दोनों मंत्र आग के छोटे बगुलों की शक्ल में आपस में टकराए और चिंगारियां बनकर गायब हो गए। अब राक्षसनी चुड़ैल ने अपनी इस ताकत का मुजाहरा किया जिसके बारे में उसने थोड़ी देर पहले कहा था। उसी ताकत के तिलिस्मी मंत्र को फूंकते ही राक्षसनी चुड़ैल एकदम एक देव कामत अजदहा के रूप में सामने आ गई। अजदहा का मुंह एक तारीक गार के मानंद खुला था, जिसमें से सुर्ख जुबान सांप की तरह बाहर निकल कर लहरा रही थी। अजदहा ने जैसे ही सांस अंदर की तरफ खींचा, एक तूफानी आंधी चलने लगी और बदरू कजली सूखे पत्ते की तरह उड़ती हुई अजदहा के खुले मुंह के अंधेरे गार में चली गई। बदरू कजली ने अपने आप को रोकने और संभलने की बहुत कोशिश की, मगर अजदहा के सांस की तूफानी आंधी उसे खींचकर अपने अंदर ले गई। अजदहा ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी आरी जैसे दंदानेदार जुबान हलक के अंदर घुमानी शुरू कर दी। जुबान की ये आरी बदरू कजली के जिस्म के टुकड़े करने वाली थी कि बदरू कजली ने उसी लम्हे गायब होकर अपना हाथ ऊपर को उठाया और उसके हाथ में तलवार आ गई। बदरू कजली गौता लगाकर अजदहा के हलक से नीचे उसके पेट में आ गई। पेट में आते ही बदरू कजली ने तलवार का भरपूर वार करके अजदहा का पेट चाक कर दिया और बाहर निकल आई। उसने देखा कि चबूतरे पर अजदहा की जगह राक्षसनी चुड़ैल उसी हालत में पड़ी थी कि उसका पेट खुल गया था और उसमें से स्याह रंग का खून उबल उबल कर बह रहा था। बदरू कजली ने तलवार का दूसरा वार राक्षसनी की गर्दन पर किया और उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी और बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर उठा लिया और कहका लगाकर कहा, राक्षसनी, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि तेरी मौत का वक्त आन पहुंचा है। राक्षसनी चुड़ैल की कटी हुई गर्दन में से छोटे छोटे सांप निकल कर जमीन पर गिर रहे थे। ये सांप मर चुके थे। राक्षसनी चुड़ैल भी मर चुकी थी। बदरू कजली ने एक फातिहाना कहका लगाया और राक्षसनी का सर लहराती उसके आसेबी तहखाने से बाहर आ गई। बाहर आसेबी बरगदों के दरख्तों के नीचे जंगल की तमाम चुड़ैलें जमा होकर वावेला कर रही थी। जब बदरू कजली राक्षसनी का कटा हुआ सर बालों से पकड़े बाहर आई तो चुड़ैलों पर सख्ता तारी हो गया। बदरू औरत कजली ने राक्षसनी का सर बुलंद करते हुए कहा, तुम्हारी सरदारनी चुड़ैल मर चुकी है, अब मैं तुम्हारी महारानी हूं।
तमाम चुड़ैलों ने सर झुका दिए। बदरू कजली ने राक्षसनी चुड़ैल का सर जमीन पर फेंककर उस पर एक तिलिस्मी मंत्र फूंका। राक्षसनी के सर को आग लग गई और देखते ही देखते वो जलकर राख हो गया। बदरू कजली ने जंगल की चुड़ैलों से मुखातिब होकर कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन मैं बहुत जल्द फिर आऊंगी। और बदरू कजली एक दहशतनाक आवाज के साथ गायब हो गई। गायब हो जाने के बाद वो खूनी बावली वाले रावण के जमीन दोज मंदिर में ज़ाहिर हो गई, जहां उसने इमरान को मकड़ी की शक्ल में बोतल में बंद करके ताक में रखा हुआ था। बदरू कजली ने अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया था। अब उसे वापस इमरान के शहर जाना था, जहां शहर से बाहर रंजीत सिंह की उजाड़ आसेब ज़दा सराय के तखाने में उसका ठिकाना था। बदरू कजली को अब यह फिक्र भी नहीं था कि कोई उसकी ताकत का पुतला चुरा कर ले जाएगा। उसने पुतले को अपने अंदर हड़प कर लिया था और पुतले की सारी तिलिस्मी ताकत उसके जिस्म के जर्रे जर्रे में जज्ब हो गई थी। उसे अगर कोई तशवीश थी तो सिर्फ इस बात की कि जादूगरनी की लाश उसके काबू में नहीं आई थी और उसे अपनी जान बचाकर गायब हो गई थी। बदरू कजली को इमरान की तरफ से यह भी डर था कि उसके बाजू पर चांद ग्रहण के 2 दायरों वाले निशान हैं, जिनकी वजह से वो बदरू कजली की तिलिस्मी ताकत का मुकाबला कर सकता है, उसकी ताकत को ललकार सकता है। वो बड़ी आसानी से इमरान को मौत के घाट उतार सकती थी, लेकिन एक जादूगरनी होने की हैसियत से वो जानती थी कि ऐसे इंसान को जिसके बाजू पर इत्तेफाक से चांद ग्रहण के दायरों के निशान हो, कोई चुड़ैल या जादूगर हिलाक नहीं कर सकता। अगर उसे हिलाक कर भी दे तो दूसरे लम्हे ऐसा आदमी फिर से जिंदा हो जाता है, और जिंदा हो जाने के बाद उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि उसका मुकाबला बड़े से बड़ा जादूगर और खौफनाक से खौफनाक चुड़ैल भी नहीं कर सकती। चुनाचे बदरू कजली इमरान को जिंदा रखना चाहती थी, मगर इस ख्याल से उसे अपने कब्जे में रखना चाहती थी कि कहीं फिर उसके मुकाबले में न उतर आए। सिर्फ इमरान ही दुनिया में एक ऐसा शख्स था जो अगर बदरू कजली के मुकाबले पर उतराए तो कजली को शिकस्त हो सकती थी। इस वजह से बदरू कजली इमरान को अपने कब्जे में ही रखना चाहती थी। उसने वो बोतल जिसमें इमरान मकड़ी की शक्ल में बंद था उठाई और गायब होकर लाहौर पाकिस्तान में अपने आसेबी ठिकाने पर वापस आ गई। अपनी पूरी ताकत मिल जाने के बाद बदरू कजली की आदमखोरी की भूख ज्यादा तेज हो गई थी। पहले हफ्ते में वो 1 या 2 जिंदा या मुर्दा इंसानों को खाती थी, मगर अब उसको हर रोज किसी जिंदा इंसान को हड़प करने की जरूरत थी। चुनाचे उसने आसेबी सराय के तखाने में आते ही इमरान वाली बोतल को ताक में रखा और गायब होकर शहर के गली कूचों में निकल आई। सर्द अंधेरी रात थी, शहर के गली कूचे सुनसान पड़े थे। बदरू कजली की जिंदा इंसानों को हड़प करने की भूख उसे बेचैन किए हुए थी। वो शहर की 4 दीवारी की गुंजान आबादी में निकल आई थी। यहाँ तकरीबन हर मकान में अल्लाह के पाक नाम और खाना काबा के कते लगे हुए थे, और हर मकान में ऐसे मर्द और औरतें रहती थीं जो नमाज रोजे की पाबंद थीं। चुनाचे शहर की गुंजान आबादी की गलियों में आते ही बदरू कजली को झटके लगने शुरू हो गए। वो फौरन समझ गई कि इन मकानों में खुदा की इबादत करने वाले लोग रहते हैं। वो गैबी हालत में ही उन गली कूचों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मगर जिंदा इंसानों को हड़प करने की भूख उसे बेहाल कर रही थी। बाहर निकलने की कोशिश के साथ साथ वो किसी ऐसे मकान की तलाश में भी थी कि जहां बेनमाजी और बेरोजादार लोग रहते हों, ताकि उस घर में घुसकर किसी औरत या मर्द को खा जाए, मगर ऐसा घर उसे कोई नहीं मिल रहा था। एक गली में जब वो एक मस्जिद के करीब से गुजरने लगी तो उसे एक ऐसा जबरदस्त धक्का लगा कि वो उलटकर पीछे की तरफ लुढ़कती चली गई। उसके हलक से एक रहम तलब चीख निकली और वो उल्टी तरफ उड़ गई और शहर से बाहर निकल आई। शहर के बाहर नई मॉडर्न कॉलोनियां आबाद हो गई थी। बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले बने हुए थे जहां रोजादार नमाजी लोग भी रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे बंगले भी थे जिनके नमाजें पढ़ने, रोजे रखने और सुबह शाम कलाम पाक तिलावत करने वाले बुजुर्ग रुखसत हो चुके थे, और वहां दिन रात माइकल जैक्सन और मैडोना के अंग्रेजी गानों की आवाज़ गूंजती रहती थी। उस किस्म के माहौल वाली कोठियों में भी मुसलमान होने के नाते कलाम मजीद किसी न किसी अलमारी में ज़रूर मौजूद था, जिसकी वजह से वहाँ बरकतों का नज़ूल रहता था। बदरू कजली किसी ऐसी कोठियों के करीब भी नहीं भटक सकती थी, वो उनसे दूर रहकर गुजर रही थी। आखिर उसे एक 5 स्टार होटल की इमारत नजर आई। होटल में जगह जगह रोशनी हो रही थी। बदरू औरत होटल की इमारत में दाखिल हो गई। उसे किसी जगह कोई मामूली सा झटका भी न लगा। वो समझ गई कि इस होटल में अल्लाह के पाक नाम की बरकतों का नज़ूल नहीं हो रहा। होटल के डांस रूम में डिस्को डांस हो रहा था और म्यूजिक की आवाज़ें आ रही थी। बदरू कजली डांस हॉल में दाखिल हो गई। जलती बुझती रंग बिरंगी रोशनियों में नीम उरियां लड़कियां लड़कों के साथ झूम झूम कर उछल उछल कर तेज म्यूजिक की धुन पर डांस कर रही थी। बदरू कजली ऐसे खुश हो गई जैसे कोई भूखी शेरनी हिरनियों के बाड़े में आ गई हो। बदरू कजली के लिए हर तरफ शिकार ही शिकार था। उसके लिए इंतखाब करना मुश्किल हो रहा था कि वो किसको खाए किसको ना खाए। वहाँ फाहशी फाहशी थी। बदरू कजली के लिए माहौल बड़ा साजगार था। उसकी भूख इतना शिकार देखकर और तेज हो गई थी। शिकार ज्यादा भी था और आसान भी था। बदरू कजली ने एक लड़की को देखा कि वो लपक लपक कर डांस कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने अपना बाजू उसकी कमर में डाल रखा था। लड़की नीम उरियां हालत में थी। बदरू कजली ने अपनी भूख मिटाने के लिए उसे चुन लिया और फिर उससे सब्र ना हो सका। वो गैबी हालत में लड़की की तरफ बढ़ी और उसके करीब पहुंचते ही अपना हाथ उसके सीने में डालकर उसका दिल निकाल कर खा लिया। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बाजू से निकलकर नीचे गिर पड़ी। उसका सीना खुल गया और खून उबल उबल कर बाहर बह रहा था।
वहां चीखो पुकार मच गई। बदरू कजली ने उसके बाद दोनों हाथों से एक लम्हे के अंदर अंदर लड़की का सारा गोश्त हड़प कर लिया और वहां लड़की का पिंजर ही रह गया। डांस हाल में लोग डांस और गाना भूलकर भागने लगे। बदरू कजली एक इंसान से अपना पेट भरकर अपने आसेवी सराय वाले ठिकाने पर वापस आ गई। दूसरे दिन फिर वो रात को शिकार की तलाश में निकली और एक 5 स्टार होटल में तालाब में नहाती एक नीम उरियां लिबास वाली लड़की को लुकमा बनाने के बाद हड्डियों का पिंजर बनाकर वापस आ गई। जब हर रात को इस किस्म की हौलनाक वारदातें होने लगीं तो लाहौर शहर में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने 5 स्टार होटल्स का रुख करना छोड़ दिया। डिस्को क्लबें बंद हो गईं। बदरू कजली ने यह देखकर अपना रुख बदल लिया। अब उसने गैर मुस्लिमों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि गैर मुस्लिमों ने अल्लाह के पाक कलाम का तावीज़ नहीं बांधा होता था। जब गैर मुस्लिमों की वारदातें होने लगीं तो उन लोगों ने भी अपनी मुकद्दस किताब की दुआओं और मुकद्दस सलीबें अपने गले में लटकानी शुरू कर दी। मुकद्दस सलीब को देखकर भी बदरू एकदम दफा हो जाती थी। इस तरह वो गिरजा घरों के भी नज़दीक नहीं भटकती थी। बदरू कजली की दरिंदगी अपनी ताकत वापस मिल जाने के बाद अरूज पर पहुंच गई थी। पहले वो हफ्ते में एक दिन इंसानों का शिकार करती थी, मगर अब वो हर रात किसी न किसी भूले भटके आदमी को खा जाती थी। पुलिस शहर में हर वक्त गश्त लगाने लगी थी, मगर बदरू कजली पुलिस को नजर आती तो उसको पकड़ते ना। वो तो डायनों की डायन और चुड़ैलों की चुड़ैल थी। वो गायब होकर ये सारा मकरू काम करती थी। इमरान के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके मम्मी डैडी रिश्तेदार और रुखसाना सख्त परेशान थे। जब कई रोज गुजर गए और इमरान घर वापस न आया तो पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। रुखसाना को शक था कि इमरान को जरूर बदरू कजली ने एक बार फिर अगवा कर लिया है। जब शहर में इंसानों की हलाकत की वारदातें होने लगी तो रुखसाना को यकीन हो गया कि ये काम बदरू कजली का है और उसकी ताकत वापस आ गई है और इमरान जरूर उसके कब्जे में है। मगर उसने इमरान के मम्मी डैडी और किसी दूसरे से भी उसका जिक्र न किया। वो खुद ही गौर फिक्र करने लगी कि इमरान का कैसे और किस तरह से सुराग लगाया जाए। उसने वो जगह भी नहीं देखी थी जहां पहली बार बदरू औरत कजली इमरान को मिली थी। वो सोच में पड़ गई कि उस बदरू का कहां से और कैसे सुराग लगाया जाए, और अगर एक बार उस बदरू औरत का सुराग मिल गया तो इमरान का भी पता चल जाएगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने बुजुर्ग आमिल से मिलने का फैसला कर लिया और एक दिन बुजुर्ग आमिल के मकान पर पहुंच गई। बुजुर्ग आमिल को सारे वाकयात का इल्म था कि शहर में अजीबोगरीब किस्म की वारदातें हो रही हैं। बुजुर्ग आमिल ने लोगों में हज़ारों की तादाद में तावीज़ तकसीम कर दिए ताकि लोग उन्हें अपने गले में बांध लें, ताकि वो खूनी बला से महफूज रह सकें। बुजुर्ग आमिल और दूसरे मजहबी आलिमों ने भी अखबारात के जरिए लोगों को हिदायत कर दी थी कि वो घरों के दरवाज़ों पर खुदा का पाक नाम लिखकर लटका दें और नमाज रोज़े की पाबंदी करें। यही वजह थी कि शहर के अंदरूनी और बैरूनी इलाके में वारदातें बंद हो गई थी। 5 स्टार होटल वालों ने भी डिस्को डांस बंद कर दिए थे। स्विमिंग पूल पर भी औरतों ने नीम मुरियां लिबास में नहाना बंद कर दिया था। अब ये वारदातें शहर से बाहर देहातों में या शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर होती थी, जहां बदरू कजली को ऐसे देहाती लोगों का शिकार मिल जाता था जिन्होंने ना तो कोई तावीज़ बांधा होता था और ना अखबारों में बुजुर्ग आमिल और दीनी आलिमों के बयानात पड़े होते थे। बुजुर्ग आमिल ने जब रुखसाना की जुबानी सुना कि इमरान कई दिनों से गायब है तो उसने रुखसाना से पूछा, तुम्हें कैसे शक है कि इमरान बदरू के कब्जे में है? रुखसाना ने कहा, शाह जी, इससे पहले भी बदरू ने इमरान को अपने कब्जे में कर लिया था जब हम आपके पास तावीज़ लेने आए थे। मुझे यकीन है कि अब भी इमरान उसी बदरू के कब्जे में है। बुजुर्ग आमिल कुछ सोचने लगे, फिर कहा, गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा की ज़ात ही को है। मैं ये तो मालूम नहीं कर सकता कि इमरान बदरू के कब्जे में है या नहीं। मैं तो सिर्फ उन बलाओं से महफूज रहने के लिए तावीज़ ही दे सकता हूँ, क्योंकि खुदा के पाक नाम की ताकत से बदरूएं नज़दीक नहीं फटक सकती। रुखसाना ने कहा, क्या आप हिसाब लगाकर भी नहीं बता सकते कि इमरान इस वक्त कहाँ होगा? बुजुर्ग आमिल ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा की ज़ात के पास ही है। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि तुम भी अपने बाजू पर तावीज़ ज़रूर बांध कर रखो, क्योंकि तुम इमरान की मंगेतर हो सकता है बदरू तुम पर भी हमला कर दे। रुखसाना ने कहा, मैंने तावीज़ बांधा हुआ है। उसके बाद रुखसाना बुजुर्ग आमिल को सलाम करके वहां से वापस आ गई। वो इमरान के बारे में सख्त परेशान थी। हर वक्त सोचती रहती कि उसे बदरू की कैद से कैसे निकाला जा सकता है। ये उसे पूरा यकीन था कि इमरान बदरू ही के कब्जे में है। जिस रात वो बुजुर्ग आमिल से मिलकर आई, ये उसी रात का जिक्र है कि रुखसाना रात को नमाज पढ़ने के बाद अपने कमरे में आकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। कमरे की खिड़की जो मकान के बगीचे की तरफ खुलती थी बंद थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे भी उनकी छोटी सी कोठी शहर से बाहर के इलाके में थी और सर्दी की वजह से सड़कें रात के 10 बजे ही सुनसान हो जाती थी। दूर किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज़ कभी कभी सुनाई दे जाती थी। रुखसाना को नींद नहीं आ रही थी। उसका जहन इमरान के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। उसने मेज़ पर रखी हुई घड़ी पर वक्त देखा। रात के 11 बजने वाले थे। रुखसाना ने टेबल लैंप बुझा दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। रात खामोश थी। रुखसाना की आंखें बंद थी, मगर नींद आंखों से गायब थी। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी।
उसने आंखें खोल दी। दस्तक की टिक टिक दोबारा सुनाई दी और खामोशी छा गई। रुखसाना ने टेबल लैंप जला दिया और कमरे की दरवाजे की तरफ गौर से देखने लगी, मगर दस्तक की आवाज़ फिर सुनाई न दी। रुखसाना ने उसे महज अपना वहम समझा और टेबल लैंप बुझाने ही वाली थी कि उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा हो। आवाज़ किसी औरत की थी, जैसे बड़े दूर से आ रही थी। रुखसाना डर गई। उसने कान लगा दिए। रात के सन्नाटे में उसे एक बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी। किसी औरत ने उसका नाम लेकर कहा था, रुखसाना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। रुखसाना जल्दी से कलमा पढ़ते हुए उठकर बैठ गई। रुखसाना अगरचे नाजुक सी लड़की थी, मगर उसका दिल बड़ा मजबूत था और वह एक दलेर लड़की थी। उसने डरने के बजाय गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? औरत की आवाज़ में नरमी और हमदर्दी थी। उसने आवाज़ ने कहा, रुखसाना, मुझसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी सहेली समझो। रुखसाना ने कहा, तुम ज़रूर कोई बदरू हो या कोई जिन भूत हो। याद रखो, मेरे बाजू पर खुदा के पाक नाम का तावीज़ बंधा हुआ है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आवाज़ ने कहा, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे ज़्यादा करीब नहीं आ रही। यकीन करो कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं बल्कि संवारने आई हूँ। रुखसाना ने झिंझलाकर कहा, मगर तुम कौन हो? अगर इंसानी मखलूक हो तो मेरे सामने आओ। औरत की आवाज़ ने कहा, तुमने खुद ही मेरा मसला हल कर दिया है। सुनो, मैं कभी इंसानी मखलूक थी, अब नहीं हूँ, इसलिए कि मैं मर चुकी हूँ और एक बदरू हूँ। बुत परस्त थी और अपने ज़माने की बहुत बड़ी और बहुत ख़तरनाक जादूगरनी थी। और मैं ये भी तुम्हें बता दूँ कि मैंने हमेशा इमरान की मदद की है। और जब वो बदरू गजली का पुतला चुराने मेरी लाश के करीब आया था तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे पुतला ले जाने से रोका था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर उसने पुतला ले जाकर बदरू औरत कजली को दे दिया तो वो बड़ी भारी मुसीबत में फंस जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अब तुम ज़रूर समझ गई होगी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इमरान ने तुम्हें मेरे बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताया होगा। रुखसाना ने कहा, क्या तुम जादूगरनी की वही लाश हो जिसके ढांचे में बदरू औरत का तिलिस्मी पुतला छुपाया गया था और जहाँ से इमरान पुतला निकाल कर ले आया था? औरत ने कहा, हाँ, मैं वही जादूगरनी हूँ। रुखसाना बोली, अब मैं सारी बात समझ गई हूँ। तुम मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ मालूम करना है। जादूगरनी की आवाज़ आई, मैं अपनी खोपड़ी की शक्ल में तुम्हारे सामने आऊंगी, क्या तुम डरोगी तो नहीं? रुखसाना ने कहा, मैं सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं डरती। तुम जिस शक्ल में चाहे मेरे सामने आ सकती हो। उसी लम्हे जादूगरनी की बदरू अपनी खोपड़ी की शक्ल में रुखसाना के सामने आ गई। वो कमरे की खिड़की और रुखसाना के पलंग के दरमियान फजा में ज़मीन से 5 फीट ऊंची लटकी हुई थी। रुखसाना ने टेबल लैंप की रोशनी में अपने सामने एक इंसानी खोपड़ी को देखा तो उसके बदन में एक सनसनी सी जरूर दौड़ गई, लेकिन वो डरी नहीं। उसने सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, मेरा नाम मारा है। ये वो नाम है जो इमरान को कभी मालूम नहीं है। मैंने उसे कभी बताया ही नहीं, तुम्हें बता दिया है, शायद इसलिए कि मैं तुम्हारी शख्सियत से मुतासिर हुई हूँ। तुम एक दलेर लड़की हो। रुखसाना ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इमरान कहाँ है? मेरा दिल कहता है कि उसे बदरू औरत ने कैद कर रखा है। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, तुम्हारा दिल तुम्हें ठीक कह रहा है। इमरान इस वक्त बदरू औरत कजली के कब्जे में है। उसने इमरान के जरिए अपना तिलिस्मी पुतला दोबारा हासिल कर लिया है। रुखसाना ने कहा, जब बदरू औरत को उसका पुतला वापस मिल गया है और उसकी तिलिस्मी ताकत उसके पास वापस आ गई है, तो फिर उसको इमरान को कैद में रखने की क्या जरूरत है? जादूगरनी मारा ने कहा, उसकी वजह है कि बदरू कजली अच्छी तरह जानती है कि अपने पास इतनी तिलिस्मी ताकत रखने के बावजूद अगर दुनिया में कोई शख्स उसको शिकस्त दे सकता है तो वो इमरान है, सिर्फ इमरान ही है। क्योंकि इमरान के बाजू पर कुदरत की तरफ से चांद ग्रहण के 2 दायरे बनाए गए हैं जो सैकड़ों साल के बाद किसी इंसान के बाजू पर ही जाहिर होते हैं। चांद ग्रहण के उन निशानों की वजह से इमरान में अपने आप बदरू कजली के तिलिस्म को बेअसर करने की ताकत पैदा हो गई है। वो इमरान से डरती है। अगर उसने उसे आज़ाद कर दिया तो उसके मुकाबले पर उतर आएगा, और दुनिया में सिर्फ वही एक ऐसा शख्स है जो अगर उसके मुकाबले पर आया तो बदरू कजली को शिकस्त हो सकती है। इस वजह से वो उसे नहीं छोड़ रही। रुखसाना ने कहा, अब मैं सारी बात समझ गई हूँ, लेकिन तुम तो इमरान की हमदर्द हो, क्या तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकती? जादूगरनी मारा ने कहा, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं बदरू औरत का मुकाबला कर सकूं। उसने मुझे हलाक करने की कोशिश की थी, मगर मैं अपने खुफिया मंत्र की वजह से गायब हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम इमरान की मदद करो, इससे पहले कि इमरान को हमेशा के लिए ज़मीन की गहराइयों में जिंदा दफन कर दे और उसे बदरू औरत की कैद से निकाल कर ले आओ। उसकी तुम फिक्र न करो, ये बदरू औरत इमरान को हलाक नहीं कर सकती। इमरान के बाजू पर चांद ग्रहण के कुदरती निशान बदरू को ऐसा कभी नहीं करने देंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती है कि इमरान को ज़मीन के अंदर या समंदर के नीचे पथरीले समंदरी गारों में हमेशा के लिए बंद कर दे, जहां इमरान ना पूरी तरह से मर सकेगा और ना पूरी तरह जिंदा रह सकेगा। रुखसाना परेशान हो गई, कहने लगी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इमरान को बदरू औरत ने कहाँ और किस जगह कैद में रखा हुआ है। मैं उसकी कैसे मदद कर सकती हूँ? और फिर मैं एक आम औरत हूँ, मेरे पास सिवाय अल्लाह के पाक नाम के तावीज़ के और कोई ताकत नहीं है। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, जिसके पास अल्लाह के पाक नाम की ताकत हो उसे किसी और ताकत की ज़रूरत नहीं रहती। ये दुनिया बल्कि सारी कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हें अल्लाह के पाक नाम की ताकत पर पूरा भरोसा है, तुम्हारा उस पर पूरा ईमान है, तो याद रखो, दुनिया का कोई जादू, दुनिया की कोई बदरू, कोई चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
लेकिन अगर किसी लम्हे तुम्हारा ईमान डोल गया और तुम्हारे दिल में अल्लाह के खौफ के बजाय किसी दूसरे का खौफ आ गया तो ये बदरूहें फौरन तुम पर हमला करके तुम्हें अपने कब्जे में कर सकती हैं। रुखसाना ने कहा, मेरा खुदा पर ईमान बड़ा मजबूत है, मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है और मेरे दिल में अल्लाह के सिवा और किसी का डर खौफ नहीं है। तुम मुझे बताओ कि इमरान को उस बदरू ने किस जगह कैद में डाला हुआ है। जादूगरनी मारा की खोपड़ी ने कहा, अगर तुम अपने इरादों और अपने ईमान पर इसी तरह साबित कदम रही तो मुझे यकीन है कि तुम इमरान को वो जिस हालत में भी है अपने साथ ले आओगी। रुखसाना कहने लगी, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि इमरान किस हालत में और कहाँ है। जादूगरनी मारा की खोपड़ी ने कहा, तुम्हारे शहर के शुमाल की जानिब 2 कोस के फासले पर एक पुरानी सराय का खंडर है जिसको रंजीत सिंह की सराय कहते हैं। उसके बारे में मशहूर है कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, लोग उस तरफ जाते हुए डरते हैं। रुखसाना ने कहा, मैंने दूर से उस सराय को खंडर को देखा है। अच्छी बात है, जादूगरनी मारा ने कहा, उस आसेबी सराय में बदरू औरत कजली रहती है। उसने इमरान को अपने जादू के जोर से मकड़ी बनाकर एक बोतल में बंद कर रखा है। तुम्हें वो बोतल वहां से उठाकर मेरे पास लानी होगी। मैं कोशिश करूंगी कि अपने तिलिस्मी ताकत से इमरान को मकड़ी से इंसानी शक्ल में वापस ले आऊं। रुखसाना ने कहा, लेकिन बदरू औरत ने वहां जरूर तिलिस्मी लहरों का हिसार खींच कर रखा होगा ताकि कोई इंसान वहां दाखिल ना हो सके। मैं उस तिलिस्मी हिसार में कैसे गुजरूंगी। जादूगरनी मारा कहने लगी, मैं जानती थी कि इंसान होने की वजह से तुम ये बात जरूर कहोगी और तुम्हारे दिल में जरूर शक और डर पैदा होगा। यही शक तुम्हारे ईमान की ताकत को कमजोर कर देगा। तुम्हें यह डर दिल में लाना ही नहीं चाहिए कि बदरू कजली का तिलिस्मी हिसार तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। रुखसाना ने कहा फौरन कि मुझसे भूल हो गई, तुम बेफिक्र हो। मैंने इसीलिए मैं ये डर, ये खौफ और ये शक अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया है। मुझे बताओ कि आसेबी सराय में दाखिल होने का रास्ता किस तरफ है और इमरान वाली बोतल वहां किस जगह पर है। जादूगरनी मारा की खोपड़ी ने रुखसाना को आसेबी सराय में दाखिल होने का खुफिया रास्ता भी समझा दिया और ये भी बता दिया कि वो बोतल जिसमें इमरान मकड़ी की शक्ल में बंद है किस जगह पर है। फिर उसने कहा, एक बात का यकीन रखो कि तुम्हारे बाजू पर बंधे हुए तावीज़ की वजह से बदरू औरत कभी तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। मैं भी एक काफिर बदरू हूँ, मगर मेरे दिल में इंसानों की भलाई और खुदा की मखलूक की खिदमत का जज्बा बेदार हो चुका है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे करीब आ गई हूँ। इसके बावजूद मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, क्योंकि बहरहाल मैं एक बुत परस्त जादूगरनी की बदरू हूँ। लेकिन बदरू कजली के दिल में शैतानी ख्यालात हैं। वो खल्के खुदा की दुश्मन है, इस वजह से वो तुमसे 20-30 फीट के फासले पर ही रहेगी। इससे आगे आएगी तो जल जाएगी। रुखसाना ने कहा, लेकिन वो मुझ पर कोई मंत्र पढ़कर तो फूंक सकती है। जादूगरनी मारा ने जवाब में कहा, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम्हारे तवीज़ की वजह से बदरू कजली के किसी तिलिस्मी मंत्र का तुम पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हारा ईमान डोल गया, अगर तुम पर खुदा के बजाय बदरू का खौफ गालिब आ गया तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। रुखसाना बोली, ऐसा नहीं होगा। अब ये बताओ कि मुझे वहां किस वक्त जाना चाहिए कि वहां पर बदरू ना हो। जादूगरनी मारा की खोपड़ी ने कहा, बदरू कजली अपनी आदमखोरी की भूख मिटाने के लिए आधी रात को सराय से निकलती है। तुम आधी रात के बाद वहां जाना। क्या तुम जा सकोगी? रुखसाना ने कहा, मैं इमरान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये इमरान ही की नहीं, मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं किसी न किसी तरह घर से निकल पड़ूंगी। जादूगरनी मारा बोली, मैं तुम्हारे साथ होंगी, लेकिन मैं तुमसे दूर होंगी। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकूंगी, क्योंकि अगर बदरू औरत को जरा सी भी भनक पड़ गई कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कह सकेगी कि मगर मुझे जरूर जलाकर राख कर देगी। मैं तुमसे दूर रहकर तुम्हें देख रही होंगी। तुम कल आधी रात के बाद उस मुहिम पर निकल पड़ाना। मैं भी आ जाऊंगी। मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे काफी दूर दूर रहूंगी, मगर तुम मुझे बराबर दिखाई दे रही होगी। रुखसाना ने सवाल किया, अगर फर्ज कर लिया मैं इमरान वाली बोतल वहां से निकाल कर ले आई और रास्ते में बदरू ने मुझे देख लिया तो वो इमरान को मुझसे छीन लेने के लिए अपनी जान तक लड़ा देगी। जादूगरनी मारा ने कहा, वो कुछ भी कर ले, मगर इस बात का यकीन रखो कि वह ना तो तुम्हारे करीब आ सकेगी और ना उसके किसी तिलिस्मी मंत्र का तुम पर असर होगा। उसका तिलिस्मी मंत्र तुम्हारे तावीज़ की वजह से रास्ते में ही बेअसर हो जाएगा। बस तुम्हारा काम यह होगा कि अगर वो बोतल तुम्हारे हाथ आ गई जिसमें इमरान बंद है तो तुम उसे लेकर ईदगाह के मस्जिद वाले रेलवे फाटक की तरफ आ जाओगी। वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम बोतल को फाटक के पास रखकर चली जाना। मैं इमरान की बोतल उठाकर गायब हो जाऊंगी और उसे किसी न किसी तरह इंसानी शक्ल में वापस लाकर तुम्हारे पास ले आऊंगी। रुखसाना ने अपने खदशे का इजहार करते हुए कहा, और अगर उस दौरान बदरू औरत मेरे पीछे लग गई तो वो तो मुझे बोतल फाटक के पास रखते देख लेगी और जैसे ही मैं बोतल रखकर पीछे हटी वो बोतल उठा लेगी और तुम भी कुछ न कर सकोगी। जादूगरनी मारा कहने लगी, तुम्हारा खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ऐसी बात हो गई तो मैं कुछ न कर सकूंगी, क्योंकि मैंने बोतल उठाने की कोशिश की तो बदरू कजली मुझे देख लेगी और उसी वक्त मुझे अपनी तिलिस्मी ताकत से जलाकर राख कर देगी। बस खुदा से दुआ करो कि जिस वक्त तुम बोतल लेकर फाटक पर आओ तो बदरू कजली वहां मौजूद ना हो। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। मैंने जो कहा है वैसे ही करना। जादूगरनी मारा की खोपड़ी गायब हो गई। रुखसाना ने टेबल लैंप बुझाया और गहरी सोच में गुम हो गई। वो बहुत कुछ सोच रही थी। सबसे अहम बात जो उसे परेशान कर रही थी ये थी कि वो एक जवान लड़की है और आधी रात को अकेली कैसे घर से निकलेगी। रास्ते में अगर गश्त लगाने वाली पुलिस ने उसे रोककर पूछा कि वो कौन है और आधी रात को कहाँ जा रही है
तो उसके लिए मसला पैदा हो सकता है, लेकिन उसे हर हालत में कल रात आसेबी सराय में जाना था। यह उसने फैसला कर लिया था। दूसरी रात रुखसाना ने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया। कुछ देर मम्मी डैडी के साथ टीवी प्रोग्राम देखती रही, फिर हस्बे आदत 10 बजे सोने के लिए अपने कमरे में चली आई। आज उसकी नींद गायब थी, उसे सोना भी नहीं था। उसे रात के 12 बजे तक जागना था और 12 बजे के बाद घर से निकलना था। जिस तरीके और जिस अंदाज से उसने निकलना था वो उसने सोच रखा था। गाड़ी उसे हर हालत में अपने साथ ले जानी थी, इस ख्याल से कि आधी रात को गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ घर में कोई अगर जाग रहा हो तो सुन न ले। उसने गाड़ी कोठी के गेट के बिल्कुल करीब अंदर की तरफ खड़ी की थी। 11 बजे रात तक वो बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ती रही। उसके बाद उसने टेबल लैंप बुझा दिया, सिर्फ बाथरूम की बत्ती जलती रहने दी और उसका आधा दरवाज़ा खुला रखा ताकि उसकी रोशनी कमरे में आती रहे। घड़ी ने जब रात के ठीक 11:15 बजाए तो रुखसाना उठकर बाथरूम में गई। उसने वुजू किया और मसल्ला बिछाकर 2 नफल नमाज अदा करके खुदा से कामयाबी और मदद की दुआ मांगी। अपने बाजू पर बंधे हुए तावीज़ को देखा, फिर सादा से कपड़े पहने, ऊपर गर्म चादर ओढ़ी और बाथरूम की बत्ती बुझा दी। साइड टेबल पर जो क्लॉक लगा हुआ था उसकी सुइयां रोशन थी। जब क्लॉक ने रात के 12:15 बजाए तो रुखसाना बाथरूम वाले पिछले दरवाजे से बाहर बागीचे में निकल आई। रात सर्द थी, हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। वो दबे पांव चलकर अकबी बरामदे में से गुजरकर कोठी के मेन गेट के पास आ गई। उसकी गाड़ी गेट के पास खड़ी थी। उसने सबसे पहले कोठी के गेट का आधा पट खोल दिया, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा उसने ज़ोर से बंद न किया। अब इंजन स्टार्ट करने का खतरनाक मरहला दरपेश था। अगरचे उसे यकीन था घर में सब गहरी नींद सो रहे होंगे, फिर भी उसे डर था कि इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ से कोई जाग न पड़े। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर चाबी घुमाई। गाड़ी का इंजन मखसूस आवाज़ के साथ स्टार्ट हो गया। रुखसाना ने गाड़ी कोठी से बाहर निकालकर एक तरफ खड़ी की। बाहर आकर कोठी का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया। गाड़ी में वापस आकर बैठी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इसी कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।